And how do you, let's say, evaluate a stock or pick a stock? So if there's any retail individual who's watching this, आपके हिसाब से ऐसे 3-4 कौन से क्राइटेरियाज या पैरामीटर्स है which they should consider before investing in a stock? See, I have a very simple framework for investing. Let me give you a formula. Ultimately everyone wants to make money, right? What is returns? Return is nothing but future price divided by current price. We don't have a paper, but let me try to explain it mentally. आप imagine करो, numerator is future price, denominator is current price. You can break the numerator. Future price is future earning per share into future price to earning multiple. पर शेयर जो अर्निंग है उस पर मार्केट कितना मल्टीपल दे रहा है, दैट इज फ्यूचर प्राइस. EPS इंटू पी बाई ई इज पी, कट भी जाएगा. EPS इंटू पी बाई ई कट पी. सो फ्यूचर EPS इंटू फ्यूचर पी बाई ई डिवाइड बाई करेंट EPS इंटू करेंट पी बाई ई. अब ये दो ब्लॉक ले लो. द ब्लॉक इज फ्यूचर EPS बाई करेंट EPS एज द लेफ्ट साइड ब्लॉक, एंड द राइट साइड ब्लॉक इज फ्यूचर पी बाई ई बाई करेंट पी बाई. नाउ मैं बोल क्या रहा हूँ? फ्यूचर EPS बाई करेंट EPS मीन्स अर्निंग्स ग्रोथ. करेक्ट. एंड द अदर सेगमेंट इज फ्यूचर पी बाई ई बाई करेंट पी बाई ई, दैट इज टेक्निकल मल्टी वैल्यूएशन. कि आपकी वैल्यूएशन एक्सपैंड करेगी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी. टेक्निकली वी कॉल इट री रेटिंग और डी रेटिंग. सो दिस इज हाउ आई थिंक. Look for companies wherein you can understand that earnings will grow. See, there's a nice phrase that in the short term, market is driven by sentiments, but in the long run, only one thing matters, which is earnings, earnings, earnings. So, the valuation multiple, re-rating, de-rating is sentiment. लोग को लग रहा है ये फोड़ेगा तो इसको और सब. See, it's ultimately demand and supply. If too much money starts chasing one segment, उसकी valuation goes through the roof. Now coming back to the formula, the goal should be to look for companies which will have good earnings growth and where you don't have too much risk of a de-rating, wherein your entry multiple is not too high. There are many examples of companies जहाँ पे 3 साल 5 साल में रिटर्न नहीं बनते हैं. Take for example a company like Asian Paints. Asian Paint was a darling on the market. लास्ट 3-4 साल में कुछ रिटर्न नहीं बने, बट अर्निंग्स तो ग्रो करी है क्योंकि वो डी रेट हो गया. सो अभी क्या हो रहा है कि लास्ट मैं आपको क्या बोला, 50% ऑफ द निफ्टी 500 कंपनीज आर ट्रेडिंग एट अ वेरी हाई वैल्यूएशन मल्टीपल, मोर देन 50 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग. सो व्हेन दैट हैपेंस, जिसमें अर्निंग्स डजंट कम स्ट्रॉन्ग इनफ इन द नेक्स्ट 2-3 years, दो स्टॉक्स विल डी रेट. ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क अगेन टू समराइज. Look for companies where you are not overpaying. The second block, future multiple has bandwidth to either hold or expand, and earnings growth can come in. The best scenario is you get tick on both, earnings growth plus multiple expansion. That is the best scenario. But as a retail investor, how do they calculate a future P? Maybe I'm just giving a mental framework. The one line summary is don't overpay. Entry valuation matters. कोई कंपनी अगर 20% ग्रो कर रही है लेकिन आप उसका P 100 गुना दे रहे हो तो वो रिस्की है मेरे हिसाब से. किसी भी कंपनी को आप इवेलुएट कर रहे हो ऐसे मार्केट में, उसकी अगर प्राइस टू अर्निंग 30-40 से ज़्यादा है तो अनलेस यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू ऑफ देयर ग्रोथ, यू आर इन अ रिस्की पोजिशन. मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि हाउ डू आई इन्वेस्ट. सो कुशल, माई फेवरेट फॉर्मूला इन इन्वेस्टिंग इज बेसिकली ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी. इसमें भी ना कुशल, ये थोड़ा टेक्निकल अगेन है बट आई एक्सप्लेन व्हाई. लोग सिर्फ P&L देख के इन्वेस्ट करते हैं, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड ROE एंड डुपॉन्ट ब्रेकअप ऑफ ROE, it covers all the 3 financial statements. So it is a great metric. What is return on equity? It is profit by equity capital. अब इसको ना कुशल 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज प्रॉफिट मार्जिन, which means PAT by sales. Second part is asset turnover, which is sales by total asset. And the third part is leverage, which is total assets by equity. What I've done is I've opened the formula in 3 parts. Yeah. Profit by net worth को मैंने क्या, profit by sales,
इंटू सेल्स बाय टोटल एसेट, सेल्स कट गया, आप प्रॉफिट बाय टोटल एसेट पे हो. थर्ड पार्ट है टोटल एसेट बाय इक्विटी, एसेट कट गया, profit by equity, you're back to ROE. Correct. So you are now, in words, if I say in words, it is return on equity is the only number which shows कि आपने जो इक्विटी के पैसे डाले उसका क्या रिटर्न है. उसको 3 पार्ट में देख सकते हो. वो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है 1, वो कंपनी का एसेट टर्नओवर क्या है, दैट इज बेसिकली एफिशिएंसी. अगर मैं पार्लेंस में बताऊं तो ऐसे समझो कि कोई एक बैट्समैन बहुत अच्छी बैटिंग करता है और फोड़ के स्ट्राइक रेट में रन बनाता है, बट हर 2 मैच के बाद इंजोर हो जाता है. ये बॉलर है जो बहुत विकेट लेके इंजोर होता है. सो एसेट टर्नओवर इज योर एफिशिएंसी. फर्स्ट वन इज व्हाट इज योर हिट रेट, प्रॉफिट मार्जिन. सेकंड इज योर कंसिस्टेंसी, कि बेसिकली आप अपने एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो टू जनरेट सेल्स. एंड द थर्ड इज लेवरेज. ये ना कुशल, मैं ऐसे चीज़ों में जा रहा हूँ जो टाइम लेती है. लोग खोजते हैं कि विच आर द डेट फ्री कंपनीज. आई डोंट बिलीव इन डेट फ्री. दे आर गुड कंपनीज, बट टेक्निकली फ्रॉम अ प्योरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डेट अच्छा होता है, क्योंकि डेट किस कॉस्ट पे मिलता है आपको, 7-8% पे. आप ROE अगर ज़्यादा कमा रहे हो 15%, तो आप तो कमा रहे हो ना. सो दैट इज समथिंग आई लुक एट, DuPont ROE. एंड और चीज़ें देखनी चाहिए यार, सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए. आपको देखना चाहिए कंपनी कैश जनरेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही. सो यू कैन एक्चुअली गो टू स्क्रीनर एंड सी लास्ट 5 ईयर का टोटल पैट कितना है एंड लास्ट 3 ईयर का टोटल नेट कैश. ये एक बार ये दिखा सकते हो स्क्रीन पे, स्क्रीनर का. Sure. दिस विल बी इंटरेस्टिंग. लेट अस लुक एट TCS. ओके, हाँ ठीक है. सो रैम सिंह, हम क्या देखेंगे TCS में. मैं 1 मिनट और बता रहा हूँ. स्क्रीनर इज समथिंग आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी यूजिंग, राइट. ये जो एक सेक्शन होता है स्क्रीनर में, ये काम का होता है. ओके. दिस इज सेल्स ग्रोथ 1, 3, 5 and 10 years. नेक्स्ट इज प्रॉफिट ग्रोथ, देन प्राइस ग्रोथ एंड ROE. तो यहाँ पे अगर किसी स्टॉक का प्राइस ग्रोथ इज टू मच हायर देन देयर प्रॉफिट ग्रोथ इन द लास्ट 3 years, विच मीन्स कि मतलब प्राइस तो भाग गई है, अर्निंग इतनी नहीं आई है. सो जनरली लुक फॉर दोज कंपनीज जहाँ पे 1 and 3 year प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ बहुत वीक नहीं हो. अगर ऐसा है कि प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ 3 साल का CAGR 8-10% है, बट स्टॉक का CAGR 50% है, मतलब कि आपकी एंट्री पॉइंट रिस्की है. स्टॉक तो भाग गया है, अर्निंग्स आई नहीं है. सो वही जो मैंने आपको मल्टीपल समझा रहा था कि अर्निंग्स ग्रोथ एंड मल्टीपल एक्सपेंशन और डी रेटिंग और कॉन्ट्रैक्शन, उधर से पैसे बनते हैं. यू रन द रिस्क ऑफ द सेकेंड वन इफ योर 3 year CAGR on the stock price is too high, divergent from the price. And showing on the, what I was telling is on the profit growth and cash flow conversion. See देखो TCS का पैट 48,000 crore है. मैं अगर लास्ट 4-5 साल का देखूं तो चलो एक्सेल में देख लेते हैं. ये लास्ट 5 year का पैट है. ठीक है, इसको मैं कंपेयर करता हूँ. कैश फ्लो में जाओ एंड यू शुड कंपेयर दिस विथ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ द लास्ट 5 years. ये मैंने 5 साल का यहाँ से ये नंबर उठाया. और ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ले रहे हो आप. एक्चुअली टेक्निकली द राइट नंबर टू कंपेयर इज EBITDA, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद ऑपरेटिंग कैश फ्लो. ओके. So let us do that. Let us take last 5 year. 6 ले लिया. ये हमने लास्ट 5 साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBITDA ले लिया. ठीक है. सो ये EBITDA है, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है. ठीक है, अभी इसको हम एक बार ऐड करके देखते हैं 5 year में हुआ क्या है. ठीक है, सो इसका रेशियो क्या आ रहा है. सो ये TCS है जिसका लास्ट 5 साल का कंबाइंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2.65 लाख करोड़ है.
इसका लास्ट 5 years का कंबाइंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 1.8 लाख करोड़ है. मैंने क्या किया, CFO कंबाइंड CFO बाय कंबाइंड एबिटा 68% एंड दिस मीट्स माय थ्रेशोल्ड. माय नंबर इज, ये आप हर कंपनी का करो, 60% होना चाहिए. अगर आपका लास्ट 5 year का CFO बाई एबिटा 60% नहीं है तो हो क्या रहा है कि व्हाट इज अ गैप बिटवीन CFO एंड एबिटा? इट इज मैथमेटिकली इट इज डेप्रिसिएशन एंड वर्किंग कैपिटल. सो डेप्रिसिएशन इज अ स्मॉलर पार्ट. काफ़ी बार क्या होती है कि प्रॉब्लम कम्स इन दी वर्किंग कैपिटल. एंड तुम तो CEO, तुम समझ जाओगे अगर मैं बोल रहा हूँ क्या हो रहा है कि कंपनी पूरी मेरी सेल्स ग्रो कर रही है 30%, आप गए पता चला रिसीवेबल भी ग्रो किया है 40%. कंपनी ने माल तो बेचा बट सारा माल क्रेडिट में बिक रहा है, कैश आ ही नहीं रहा है. इसलिए ये रेशो दिखते हैं कि ये कन्वर्जन ऑफ लास्ट 5 year कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय कैश फ्लो बाय एबिटा 60% होना चाहिए आइडियली. दिस इज अ नंबर आई वॉच Got it. along with ROE. And then there are more things you have to look at, working capital and those kind of things. Got it. Very very interesting. काफ़ी सही था ये. And I think it's like a good framework also for anyone to follow. और ये जो डेटा है जो स्क्रीनर पे, तो that is publicly available. मतलब कोई भी See, I use Screener because I think that is something that everyone has access to. It's great. I think you get everything. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.